नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। और अमेरिका के B2 बम वर्षक विमान ने ईरान का फोड़ो उड़ा दिया है। फोड़ो वो जगह है जहां पर ईरान, ऐसा कहा जा रहा है कि बम बना रहा था, परमाणु बम, और उसको उड़ा दिया गया है। यानी कि परमाणु बम बनाने का ठिकाना ईरान का अमेरिका ने उड़ा दिया है, और उसके साथ 2 ठिकाने और उड़ाए हैं। और अमेरिका ने सीधी सीधी ये चेतावनी भी दी है, यदि ईरान ने अपना परमाणु बम बनाने का अभियान बंद नहीं किया तो ये हमले और होंगे। और ट्रंप ने सीधी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिया है कि ईरान 40 साल से अमेरिका को आंखें दिखा रहा था, यानी धमकी दे रहा था, और उसका इलाज हमने किया है और फोर्डो को उड़ा दिया है। यदि ईरान घुटनों के बल नहीं आया और ईरान ने शांति का रास्ता नहीं अपनाया तो अमेरिका और भी परमाणु बम के ठिकानों पर हमले करेगा। और जो ट्रंप हैं वो सामने आए हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बोली हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली ट्रंप की। अब इसी के उलट
ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई ने भी सीधा बोला है कि अमेरिका ने इस जंग की शुरुआत की है, खत्म हम करेंगे। इस युद्ध में अमेरिका ने सीधी सीधी एंट्री की है, तो अब उसका जो है भुगतान भुगतना पड़ेगा अमेरिका को। और आज सुबह सुबह ईरान ने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ जो है वो मिसाइलें दागी हैं, और आप देखिए कितना खतरनाक मंजर जो है वो आसमान पर दिखाई दे रहा है। और कुछ जो मिसाइलें जो एयर डिफेंस सिस्टम से बच जाती हैं वो इजराइल में गिरती हैं और पूरा जो वहां पर तांडव मचा देती हैं। अब अगर ये ईरान ने यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगाया तो मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे ये युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार होने जा रहा है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में भारत भी आएगा, और भारत को भी कहीं ना कहीं तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब पड़ोस में आग लगती है तो चिंगारियां कुछ अपने घर के ऊपर भी आ जाती हैं, तो तैयारियां पहले से ही हो जानी चाहिए। और जो ईरान है ये शिया देश है, यानी कि शिया मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं, और खाड़ी देशों में आपको पता है शिया सुन्नी का जो मैटर है वो चलता रहता है। ऐसा भी पता चला है जो खाड़ी देश हैं बाकी, वो भी नहीं चाहते कि ईरान जो है वो परमाणु बम अपने पास बना पाए, क्योंकि यदि ईरान के पास परमाणु बम आ गए तो वो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के साथ साथ बाकी खाड़ी देशों को भी आंखें दिखाएगा। और ये जो टूट है ये कहीं ना कहीं खाड़ी देशों में भी है। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। क्या चाइना ईरान के साथ आएगा? क्या रशिया खुलकर ईरान के साथ आएगा? क्या बेलारूस ईरान के साथ आएगा? क्या तुर्की जो है वो खुलकर ईरान के साथ आएगा? और एक तरफ आपको पता है अमेरिका, जर्मनी, जापान, यानी कि बहुत सारे जो देश हैं वो अलग हैं। यानी कि यदि ये युद्ध दो गुटों में बटा तो थर्ड वर्ल्ड वार का रूप ले सकता है। और मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं आपको पता है ईरान में कट्टर इस्लामिक सरकार चलती है। अगर कट्टर इस्लामिक सरकार ने ये कदम पीछे नहीं हटाया और जवाबी कार्रवाई की तो कहीं ना कहीं इसका आपको भी पता है कि भुगतान ईरान की जनता को भुगतना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो कट्टर इस्लामिक देश ईरान बन चुका था उस कट्टर सरकार के खिलाफ वहां के महिलाएं और लोगों ने भी मोर्चा खोल रखा है। यानी कि विश्व में शांति जो है वो होनी चाहिए, ये हम भी अपने प्लेटफॉर्म से चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे निर्दोष और मासूम लोग मारे जाते हैं। अब मैं आपको वो विमान दिखाता हूं जो B-2 बम वर्षक विमान है अमेरिका का, और वो फोर्डो के ऊपर बम गिराने के बाद वापसी आता हुआ दिखाई दिया। उसकी पिक्चर आप देखिए। ये अमेरिका के पास सबसे पुख्ता विमान है जो कि अपने टारगेट को भेदता ही है, और B-2 बम वर्षक विमान इसको कहा जाता है। और B-2 जो बम है यानी कि ये आपको मैं बता दूं 200 फुट अंदर तक जाकर जमीन के मार करता है, और बड़े से बड़े और पुख्ता जो बंकर बना रखा है उसको भी फोड़कर बाहर कर देता है। आप देखिए ये विमान, तो आपने ये विमान देखा, ये अमेरिका का बम वर्षक विमान था जो फोर्डो के ऊपर बम गिरा के आया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका की ताकत है उसके आगे आपको पता है किसी की ताकत मायने नहीं रखती है, और समय का तगाजा ये कहता है, यानी कि नाजुकता ये कहती है कहीं ना कहीं ईरान को फिलहाल शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, जिससे कि निर्दोष लोगों की जान न जाए, और पीछे हाथ खींच लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इजराइल जो है वो भी पीछे नहीं हटेगा, ये इजराइल का इतिहास है। और जो ईरान है, ईरान भी ये कहता है कि हमारा भी इतिहास है कि हम भी पीछे नहीं हटते हैं। अब ये अगर दोनों देश आपस में इसी तरह जो है लगे रहेंगे तो इसमें जनता जो है वो मारी जाएगी दोनों तरफ की। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें जो बड़े देश हैं उनको निकलकर सामने आना चाहिए और शांति जो है उसको बहाल करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं अमेरिका जो है वो कतई नहीं चाहेगा कि ईरान जो है परमाणु बम बनाए, इजराइल भी नहीं चाहेगा, और जो सऊदी है
ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी भी नहीं चाहता कि ईरान जो है वो परमाणु बम बना पाए। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं त्रिसत्तात्मक युद्ध होता नजर आ रहा है। और क्या चाइना ईरान को गुपचुप तरीके से हथियार पहुंचाता रहेगा? और अभी तक की बात करें तो ईरान ने केवल अपने स्वदेशी मिसाइलों का ही प्रयोग किया है, और ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब 3000 से लेकर 4000 मिसाइलें, सुपरसोनिक मिसाइलें वो ईरान के पास हैं। और ईरान अगर ऐसा ही युद्ध में डटा रहा तो मैं कह रहा हूं कि ये आने वाले समय में बहुत ही भयंकर युद्ध होगा। और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं जो बहुत ही भयावह हैं। यानी कि अमेरिका ने जो बम गिराया है फोर्डो के ऊपर, उसकी आप तस्वीर देखिए। ऐसे आप सोच सकते हो कि मिनी परमाणु बम जो है वो लगभग फोर्डो के ऊपर गिरा दिया है, और इसका जो विस्फोट है वो बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ है। और ये पुष्टि खुद ट्रंप ने की है कि फोर्डो जो है वो हम खत्म कर चुके हैं, और यदि ईरान बाज नहीं आया तो हम और भी हमले करेंगे। आपका जो विचार है वो हमें चाहिए कि क्या ये युद्ध वाकई में सही युद्ध है? क्या इसमें ईरान तबाह हो जाएगा या इजराइल तबाह हो जाएगा? और आपकी राय हम चाहते हैं, क्या शांति अच्छी है या युद्ध अच्छा है? क्योंकि युद्ध में निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो आपका कमेंट बॉक्स में हम राय जरूर जानना चाहेंगे कि शांति कायम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। विश्व के लिए कहीं ना कहीं शांति ही सुखदायक है। और क्या भारत के ऊपर भी इस युद्ध की चिंगारी आ सकती है? क्या भारत के ऊपर भी इसका असर हो सकता है? और ये युद्ध कितना निर्णायक रहेगा ईरान के लिए या इजराइल के लिए? इसकी भी हम अपने जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं उदय भान सर, उनसे शाम को 8 बजे लाइव आकर उनका भी विश्लेषण सुनेंगे कि अब जो ये हमला जो है अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया है, ये आने वाले समय में चलकर कितना भयंकर रूप ले सकता है, या ईरान इस हमले के बाद चुप बैठ जाएगा और पीछे हाथ खींच लेगा। ये हम अपने विशेषज्ञ से जानेंगे शाम को 8 बजे। आप चैनल के साथ बने रहिए और मौलिक भारत को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको राजनीति के अंदर की खबरें और विश्व में और देश में क्या चल रहा है वो खबरें आपको मिल सके। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।